Hello, dosto, namaskar. Hello, friends. How are you doing today? Friends, this is your friend Vivek Bajaj, co-founder Stockage, Elon Markets. Friends, I hope you are liking our face-to-face series. Almost 45 videos recorded and all experts, everyone who has contributed to this knowledge bank. I'm so thankful to them that people are really learning a lot of things from their experience, from their wisdom of participating in the market, either as a trader or as an investor. फ्रेंड्स यू विल रिमेम्बर हम लोगों ने काफी टाइम पहले एक रिकॉर्डिंग किया था. वी रिकॉर्डेड अ वीडियो विद वरिंदर बंसल वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट how to use data to find out stocks to invest. And the face to face was almost 2 hour long, and it was actually the most lengthiest face to face and the most interesting face to face I have ever recorded. And it was seen by more than a lakh people, and people really love the way the process of using data to identify stocks was used by Verinder. Now, after that face to face, I got requests from various people that they want more understanding about how to use data to analyze market to find out both trading as well as investing opportunities. Now, guys, I've always recorded and I've told this that I'm a strong believer of this fact that the market has requires a very strong combination of technique and temperament. And data is part of technique. And once you have done with your technique properly, then over a period of time, you develop the temperament and you become a better market participant with your experiences of market. Now, to understand the technique, you have different form of technique. You can have fundamental technique, you have technical technique, but by and large, all the techniques revolves around quant or numbers. So if you want to succeed in market, अगर आपको market में successful होना है, तो numbers के साथ तो आपको खेलना आना ही पड़ेगा. You can't shy away from that piece because ultimately market is all about numbers, be it corporate numbers, financial numbers, be it market data, be it volume, open interest data, whatever you talk about. Finally, you have to learn the art of analyzing numbers. And that's what Verinder explained us in his video when he was talking about using screen techniques to figure out stocks which could potentially give you good return, and what returns those stocks have given since we last released the video. So similarly, I was in a quest to identify someone who can do similar kind of a work, if not better, and shows the process of using data in participating in the market. And while I was searching for the right person, I came across this person who is part of a common WhatsApp group, and I've been observing his posts, I've been observing his work, his inputs which he has been giving in that group, as well as his Twitter is quite low profile, but very rich with right information. So I thought I will record a face-to-face with this gentleman. It's my privilege, and I'm very happy to welcome Saurav Kumar as part of this face-to-face. Hi, Saurav. Hi Vivek, how are you doing? Hi. All well, all well. I hope everything is fine with you. I guess you are based out of Bangalore. So Bangalore people are saying that things are pretty much under control. Yeah, recently now there has been a spike, but still from last 2, 3 months, I think Bangalore has done really well. So Yeah, I hope that continues. yeah. Sincerely And hope the thanks for fingers the are great crossed. introduction. Yeah. Saurabh, I've been following And you, and actually, I have watched Varinderji's. Yeah, I watched Varinderji's episode. So, I mean, I hope I am able to do a little bit of justice, the kind of great work he does. Also, Rishikesh ka ek video dekha last. So, thanks for giving this platform. I think there are lots and lots of viewers who are going to watch this. So, मैं उनके time का best, use करने का पूरा try करूँगा, and I will ensure I make best use of their time. Yeah. awesome, Saurabh. I'm sure you will, because I've been tracking your work and I've been really impressed with the output which you are producing in social platforms. So before we go to your work and discuss some technical aspects of market, let us talk about you first. Who you are, what is your background, and what lead you to doing what you are doing right now.
So I'm a full-time employee. I work with one of the MNCs in data science background. So I'm a data scientist, but data scientist मैं 5 साल से हूँ. उससे पहले कुछ और था. So I did my MBA in 2010 from Narsee Munji, and 3 साल में finance में काम किया. I worked in financial due diligence and risk management, and then I shifted to analytics. So that is my background. Almost 12 years of work experience in finance and analytics. And market में the first time I came in market was 2007. So college से पास किया, इंजीनियरिंग की नौकरी लगी, पहली बार सैलरी आई, रूममेट गया ट्रेडिंग अकाउंट खोला, मेरा भी खुलवाया. And that first year, like we spent 6 months, and then 2008 आया, and then like everything went for toss. So one thing I realized कि बहुत dangerous चीज है. And in fact, one of the inspiration to do MBA came from that कि एक अकाउंटिंग की बुक लेकर आया और कुछ समझ में नहीं आया. तो तब लगा कि नहीं, एमबीए करना चाहिए, जॉब के लिए भी अच्छा है, शायद मार्केट के लिए भी अच्छा हो. तो गया एमबीए करने, बट देन आई रियलाइज कि मार्केट में तुरंत घुसना इतना सही नहीं है. तो आफ्टर दैट 2008 एक्सपीरियंस आई टुक ऑलमोस्ट 4-5 years ऑफ पॉज. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाता था. आई थिंक 2012-13 में मैं रेडी हो रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज सम ऑफ द वर्क आई डिड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल, that gave lot of exposure, and I felt कि अभी ठीक टाइम आ गया है, लगाते हैं. But then this career shift happened where I shifted to analytics because मुझे लगा कि this is a growing industry और यहाँ बहुत स्कोप है. But analytics का लर्निंग कर्व इतना ह्यूज था कि मतलब फिर अगेन नेक्स्ट 2 साल कुछ भी मतलब टाइम नहीं मिला कि आई रियलाइज कि अभी पैसे नहीं लगा सकते बिकॉज कंपनीज ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है. So finally, it started in 2015 when I started shifting my mutual fund portfolio to equity. और 2016 में दो मौके आए. एक ब्रेक्सिट आया अप्रैल में और दूसरा डिमोनेटाइजेशन आया नवंबर में. ये जो दो मौके आए, इसमें मैंने अपना ऑलमोस्ट पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड से इक्विटी में वापस डाला, एंड देन इट हैज बीन ऑलमोस्ट लास्ट 4 years, लॉट ऑफ लर्निंग. एंड आई थिंक अर्ली फेज में जितने ज्यादा चैलेंजेस मिले उतना बेटर है. तो मेरा दो एंट्री हुआ, एक एंट्री में 2008 आया और दूसरी एंट्री में तो डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोरोना सब कुछ चल रहा है. सो दैट हैज बीन द जर्नी. And I started more as a fundamental investor. I mean, reading companies' financials, balance sheet, annual reports. But because ये जो analytics का background है ना, so I have lot of fascination for data. And the question came कि मैं एक full time employee हूँ, मैं जाके dealer से नहीं मिल सकता, मैं supplier से नहीं मिल सकता. So where is my edge? And I felt maybe data could be the edge, and that is where I started looking at data, much more detailed manner. And what I realized, हम एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं वर्सेस हम 10 कंपनी उस सेक्टर में एक साथ एनालाइज करें, वर्सेस हम 10 सेक्टर एक साथ एनालाइज करें. जो 3 लेवल का एनालिसिस है ना, इसमें जो रिटर्न नॉलेज का जो रिटर्न जनरेट होता है ना उसी 1 घंटे में, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे होता है. एंड दैट इज वेयर इट स्टार्टेड. देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू फंडामेंटल एनालिसिस थ्रू डेटा. देन एज यू नो वी आर ऑन सर्टेन ग्रुप्स, एंड और भी फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ फंडामेंटल नहीं करते. कोई क्वांट से पैसे बना रहा है, कोई टेक्निकल से पैसे बना रहा है. तो लर्निंग तो ओपन होनी चाहिए और हमें ओपन होना चाहिए. सो स्लोली फ्रॉम देयर आई ग्रेजुएटेड टू ओके ठीक है, मैं सीधे टेक्निकल में नहीं घुसूंगा, पहले मैं इंडेक्स का टेक्निकल करूंगा, फिर इंडेक्स का टेक्निकल का एक दो मॉडल बनाया, देन स्टॉक का. सो जर्नी चालू है, चल रही है. फंडामेंटल से शुरू किया था, फंडामेंटल कंटिन्यूड है, इंडेक्स ऐड हुआ है, और स्टॉक बेस्ड टेक्निकल क्वांट्स इज समथिंग व्हिच आई एम लर्निंग, एंड देयर आर फ्यू एल्गोस आई हैव क्रिएटेड जो मैं अभी बीटा टेस्टिंग मोड में है. सो दैट हैज बीन माय हिस्ट्री. फैंटास्टिक सौरभ, फैंटास्टिक, व्हाट अ लवली जर्नी. मुझे एक बात बताइए, आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट इक्विटी में आए हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड सही है? सो मैं वो भी टच करूंगा. म्यूचुअल फंड किसी टाइम पे सही है, किसी टाइम पे सही नहीं है. कब सही है कब नहीं है वो हम देखेंगे ऑसम, ऑसम. अभी अगले घंटे में. Yeah. आई थिंक ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू द राइट टू प्रेजेंट, ताकि हम आपको आपका प्रेजेंटेशन और आपको ज्यादा देखें. सो आई एम मेकिंग यू द प्रेजेंटर. Sure. ओके. और मेरी वीडियो में बंद कर दूंगा ताकि इंटरनेट ज्यादा डिस्टर्ब ना करे हम लोगों को, और हम आपको सुनना चाहेंगे. आप कंटिन्यू करें, और बीच बीच में मेरी जो बुरी आदत है कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो डोंट गेट बॉदर्ड विद दैट. Sure, sure. That will make it interactive, and I मतलब मुझे मोनोलॉग नहीं लगेगा, तो आप बीच बीच में इंटरप्ट करते रहिए. एब्सोल्युटली सर. Let me just चलिए. minimize it. So data is new Yeah. oil. That's the building block. That's what Mukesh Bhai said Yeah. So almost 4 years ago. yeah. So I hope आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. Yes, yes, we can see your screen. Please go ahead. Okay.
या सो दिस होल डिस्कशन सब कुछ डेटा से शुरू होता है। सो जब डेटा से शुरू होता है तो पहला क्वेश्चन आता है कि डेटा क्या है और डेटा कहाँ मिलेगा। सो दिस इज अ स्मॉल स्लाइड विच टेल्स डेटा क्या है। सो अगर हम स्टॉक मार्केट को देखें तो डेटा क्या क्या हो सकता है और हम डेटा को कैसे स्लाइस कर सकते हैं। तो एक तो डेटा हुआ एंटिटी वाइज कि अगर हम पूरा मार्केट देखें तो पूरे मार्केट में अगर 15 साल में देखें तो 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्ट हुई हैं बीएसई पे। तो आपकी ये 6000 कंपनीज हो गई। वो 6000 कंपनीज 80 प्लस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती हैं और वो 80 प्लस इंडस्ट्रीज 13 प्लस सेक्टर को बिलोंग करती हैं। तो ये एक व्यू हो गया डेटा का। दूसरा व्यू हो गया डेटा का कि टाइम बेस्ड। सो साल का भी डेटा होता है जो आपके पीएनएल बैलेंस शीट में आता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आप फंडामेंटल से टेक्निकल पे आ जाइए तो मंथली डेटा भी होता है, वीकली डेटा भी होता है। बहुत लोग होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो वीकली चार्ट देख के करते हैं, बहुत लोग डेली और बहुत लोग 10 मिनट के चार्ट पे भी करते हैं। यू नो द डेटा इज ह्यूमंगस इफ यू लुक बाय पीरियोडिसिटी एंड इफ यू लुक बाय एंटिटी। एंड डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल डेटा है जो आपका पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, शेड्यूल्स हो गया। नॉन फाइनेंशियल डेटा है एंड मैंने कुछ कुछ ब्लॉगिंग किया है। ये नॉन फाइनेंशियल डेटा हम लोग बहुत बार देखते नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मैंने कुछ एनालिसिस किया था जहां वेल्थ डिस्ट्रक्शन के पैटर्न्स शेयर होल्डिंग पैटर्न में विजिबल हैं। सो ये सब नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ट्रेड डेटा हो गया जो टेक्निकल्स में यूज होता है और टेक्नो फंडा वाले लोग सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, फाइनेंशियल और ट्रेड डेटा दोनों यूज करते हैं। जहां आपका डेली कंपनी का क्या भाव जा रहा है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, कितना वॉल्यूम था, क्या डिलीवरी था, वो हो गया। एक और डेटा है जो मैंने यूज नहीं किया है लेकिन मेरी दिली तमन्ना है एक टाइम पे मैं अपनी लाइफ में यूज करना चाहूंगा। ये डेटा आप देखिए तो ये सारा डेटा ऊपर टेबल के फॉर्म में आता है, बहुत रेडिली अवेलेबल होता है। ये जो डेटा है कि एनुअल रिपोर्ट, अब एनुअल रिपोर्ट एक 200 पेज की किताब है ये भी डेटा। इट जस्ट ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, टेबल फॉर्मेट में नहीं है, बट टेक्नोलॉजी इस लेवल तक जा चुकी है कि ये सब डेटा भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो मैंने भी किया नहीं है और मैं ये प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल रखूंगा, बट मे बी जब हम मे बी 2-4 साल के बाद इंटरेक्ट करेंगे, मे बी मैं चाहूंगा कि मैं इस पे भी कुछ प्रेजेंट करूं। तो फिलहाल हम लोग अपना सारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखेंगे। तो अब ये डेटा आएगा कहाँ से? सो डेटा 3-4 तरीके से आ सकता है। सबसे पहला और सबसे इजी तरीका होता है आप खरीद लो। आप पैसे दे रहे हो इसलिए आपका टाइम बच रहा है और सिंप्लिसिटी है, बट खरीदना इतना इजी नहीं होता बिकॉज सम ऑफ दीज डेटा वेंडर्स दे सेल एट 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पर ईयर। सो इट्स ए कॉस्टली ऑप्शन, बट हाँ आपको डेटा इजिली और रेडली अवेलेबल मिलता है। बट लेटेस्ट है कि आप उस ऑप्शन पे नहीं जाना चाह रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप देखो फ्री सोर्सेज क्या अवेलेबल है। तो इसमें से कुछ डेटा ऐसा है जो फ्रीली अवेलेबल है। जैसे जब मैं ये ट्रेड डेटा की बात करूं तो ट्रेड डेटा फ्रीली अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी savvy होना पड़ेगा। एंड यू टोल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, यू टोल्ड अबाउट द टेक्निकल knowledge and the behavioral knowledge, and it is very very important, both are very important। एंड आई थिंक वी आर इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हर किसी को टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ये डेटा आप खरीदोगे, अगर आपको टेक्नोलॉजी पता है तो शायद आप पैसे बचा सको। सो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें आप डेटा स्क्रैप कर सकते हो या डेटा एपीआई से ला सकते हो। तो जैसे पाइथन एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो देर आर पैकेजेस लाइक एनएससी पाई करके एक पैकेज है जिस पैकेज के थ्रू आप चाहो तो जो डेली ट्रेड डेटा या फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है फंडामेंटल डेटा कहाँ से आए। तो हम लोग लाइक थैंक्स टू आयुष एंड प्रत्युष हम लोग स्क्रीनर देख देख के अभी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट हैज बीन बिग बेनिफिट टू रिटेल शेयर होल्डर। स्टॉक एज उसको आगे बढ़ा रहा है, लाइक द काइंड ऑफ थिंग if screener brought it on desktop, stockage has brought it on our mobile phones। so lot of that free source data we can leverage। तो जैसे आपके स्क्रीनर में ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल फंक्शनैलिटी है। तो लेट्स से कि मैं मैरिको पे गया, मैंने एक्सपोर्ट टू एक्सेल किया और ये मेरा मैरिको का एक्सेल शीट है। अब मैंने ना इस एक्सेल शीट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप देखो तो ये जो ऑर्गेनाइज किया है मैंने लास्ट 10 साल का, लास्ट ईयर प्रीवियस 1-2 करके ये 10 साल का डेटा इस फॉर्मेट में मैंने एक बना लिया है। और ये कौन सा साल था और उसके बाद जो मेरे फाइनेंशियल मीट्रिक है, सेल्स, रॉ मटेरियल, ये ऑलमोस्ट 50-60-70 मीट्रिक में जाएगा। ये राइट साइड, ये सब एक बार का एफर्ट है, मैंने ये एक बार क्रिएट किया। अब अगर मैं ऐसी 100 कंपनीज का एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूं तो मेरे पास 100 कंपनी का डेटा इसी फॉर्मेट में आ गया जो मैंने आपको अभी दिखाया। ओके तो बहुत अलग अलग फॉर्मेट नहीं है, दिस फॉर्मेट।
अब लेटर से कि हम मार्केट का पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो जैसे मैं एक स्टडी अभी डिस्कस करूंगा जो है कि वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका पैटर्न क्या होता है। तो जब भी पैटर्न की बात आती है, आप एक कंपनी से पैटर्न नहीं निकाल सकते, बिकॉज पैटर्न नीड्स रिपीटेड एविडेंस। सो आपको 100, 200, 400 कंपनीज में लगातार वो पैटर्न देखने होंगे। तो हम फ्री में स्क्रीनर से ये 100, 200, 400 एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में आप क्राउड सोर्सिंग कर लीजिए, मे बी आप एक सेक्टर उठा लीजिए, कोई एक सेक्टर उठा ले, और वंस यू हैव डाउनलोडेड these 300, 400 different companies Excel in the common format, देन आप पाइथन में, इवन एक्सेल में विजुअल बेसिक बीबीए प्रोग्रामिंग होती है, आप बेसिक 10-15 लाइन के कोर्स होते हैं और आपको ये सब गूगल पे मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। जैसे इलन के इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, ऐसे ही पाइथन के बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्री कोर्सेज, फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो 500 कंपनी का डेटा है, ये आप रो बाय रो अपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर एक कंपनी में 10 रो हुआ, तो 500 कंपनी में आपका ऑलमोस्ट 5000 रो हो गया। और फिर आपका डेटा तैयार हुआ, जहां आपके 5000 रोज हैं, जो 500 कंपनी का 10 साल का परफॉर्मेंस बता रहा है, और मे बी आपके 50-60 कॉलम्स हैं जो आपको फंडामेंटल मीट्रिक बता रहे हैं। जैसे वरिंदर भाई के प्रेजेंटेशन में वो रिटर्न ऑन कैपिटल की बात कर रहे थे, डेट इक्विटी की बात कर रहे थे, तो ये सब मीट्रिक आप क्रिएट कीजिए। तो यहाँ से आपका डेटा बनता है, और ये डेटा जब बन के तैयार होता है, तब फिर एनालिसिस शुरू होता है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट डेटा। एंड आई हैव गिवन बोथ ऑप्शंस। अगर आप खरीदना चाहें, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप फ्री करना चाहें तो थोड़ा सा एफर्ट है, बट दिस एफर्ट इज लाइक, आप सपोज कीजिए आप 30 सेकंड में एक बटन क्लिक कर रहे हैं, तो आप 2-3 घंटे में बेसिकली 400-500 कंपनीज का कर सकते हैं। और ये वन टाइम एक्सरसाइज है, आपने कर लिया। तो एक बार अब डेटा रेडी हो गया, तो क्या करना है, एनालिसिस कैसे शुरू करना है। तो विवेक जी, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके। बस एक सो छोटी सी जो बात करनी थी पहला, हाँ जी, कि आपका जो ये वाला स्लाइड है, इसमें जितना भी डेटा पॉइंट्स आपने मेंशन किया ना, वो सारा तो हमने स्टॉकेज में डाल दिया है। तो इस बात की खुशी हाँ है कि हमने हाँ, कुछ मिस तो नहीं किया सब अभी कुछ है, तक। सब कुछ है। नहीं, सब कुछ है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर मेरी आपसे बात हुई थी स्टॉक होल्डर का, शेयर होल्डर का डेटा, वो भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली डाला हुआ है। सो देयर इज नथिंग विच इज नॉट देयर। आई थिंक ऑल द मैट्रिक्स इज अवेलेबल इन स्टॉकेज। सो जो पहला केस स्टडी है वो कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। एंड व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, बिकॉज अगर आप मार्केट में देखोगे, टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी टेक्नोलॉजी या क्वांट्स मॉडल की बाट करता है, everybody starts with Python, and Python is basically a programming, and programming is about, software engineers करते हैं। हर किसी के लिए सीधे प्रोग्रामिंग पे जंप करना इजी नहीं है। और दूसरी चीज, ये मेरा मानना है कि देयर आर लॉट ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स which can be plugged without even getting into programming. So और भी इजी टूल्स अवेलेबल हैं जहां वो सब करने के लिए आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसे टूल का इंट्रोडक्शन करूंगा, and these are called BI tools और visualization tools. अगर आप यूएस मार्केट ट्रैक करते हैं तो आपने सुना होगा कि टैबलो को एक बड़ी कंपनी ने, आई थिंक सैप ने एक्वायर किया था। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई लॉन्च कर रहा है। सो दीज आर विजुअलाइजेशन टूल। ये करते क्या है, ये लाखों करोड़ों रोज को और हजारों कॉलम्स को एक साथ एक जगह पे लाके, वो जो चार्ट्स आप एक्सेल में देखते हैं या फिर ट्विटर पे आप देखते हैं, वाह क्या चार्ट बनाया है, those kind of charts you can create on your own and you can start deriving insights. So मैं आपको कुछ वैसे charts इस डेटा को यूज करके दिखलाऊंगा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन और वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है फंडामेंटल एनालिसिस करके, जहां पे मैंने ये सारी 500 प्लस कंपनीज को, इनफैक्ट मैंने और भी ज्यादा कंपनीज ली, लेकर गया और मैंने ट्राई किया कि मैं वो पैटर्न्स निकालूं। एंड आज मैं आपको वैसे कुछ पैटर्न दिखाऊंगा। एंड मेरी जो एक मेजर लर्निंग ये रही है कि पैसा डूबे नहीं, ये पहले सीखना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा डूबेगा नहीं तो पैसा बनेगा जरूर। तो पैसा डूबे नहीं, वहां कैसे फोकस करना है, मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मैं आपको दिखलाऊं। तो अब मैं जंप कर रहा हूं इस टूल पे जिसको पावर बीआई कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। आप चाहिए तो आप फ्री में जाइए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और डेटा फाइल प्रिपेयर किया है यहाँ लोड कीजिए। और इसमें आपको ना कोई मेजर प्रोग्रामिंग नहीं लिखना है, ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप है। सो बेसिकली ये पूरा मेरा डेटा है, ये सारे कॉलम्स हैं। एंड मुझे अगर कोई चार्ट बनाना है तो
आप देखिए, आपको बार चार्ट चाहिए, स्टैक बार चार्ट चाहिए, अब ये सब भी अपने आप में लर्निंग है। थोड़ा विजुअलाइजेशन भी सीखना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा चार्ट यूज करना है, पाई चार्ट कहाँ बेटर है, स्टैक चार्ट कहाँ बेटर है। और आप चार्ट बनाना यहाँ इज ऑल अबाउट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। आप इसको ड्रैग कीजिए, जो वेरिएबल देखना है, अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल देखना है तो रिटर्न ऑन कैपिटल ड्रैग कीजिए, डेट इक्विटी देखना है तो आपको कुछ लिखना नहीं है, ये पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करता है, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट इट। अगर आपको फिल्टर करना है बाई ईयर, बाई सेक्टर, बाई इंडस्ट्री, वो सब ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। तो मैं तीन चार इनसाइट्स दिखाता हूँ कि क्या काम करता है। तो मैं सबसे पहले ये एनालाइज करना था कि कैसे मतलब पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्ट्रक्शन। तो मेरे कुछ हाइपोथेसिस थे। तो अगर हम मार्केट में बात करें तो हर कोई कहता है, या फिर अगर आप बुक पढ़ें, आप फिलिप फिशर की बुक पढ़ें, तो हर कोई कहता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल हाई होना चाहिए, डेट इक्विटी डेट फ्री होना चाहिए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे होना चाहिए। और बहुत बार हम लोग कहते हैं कि नहीं, इसका तो रिटर्न ऑन कैपिटल 10% है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये 40% है तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि इंडिविजुअली ये सब पैरामीटर कितने इंपॉर्टेंट है, और इन सारे पैरामीटर को एक साथ लिया जाए तो कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है उसमें हर चीज का एक रोल होता है। कितना रोल है ये कोई नहीं जानता। मतलब मैंने तो बुक में नहीं देखा कि कोई कह दे कि इसका रोल 20% है और इसका रोल 40% है। तो टू सम एक्सटेंट, विदाउट गेटिंग इनटू प्रोग्रामिंग एंड विदाउट गेटिंग इनटू एडवांस एल्गोरिथम्स, एक मशीन लर्निंग एरिया है जहां ये सब भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट विद अ वेरी क्रूड वे विच कोई भी जनरल आदमी आराम से कर सकता है। विल ट्राई टू हाईलाइट सम ऑफ देम। सो यहाँ एक मीट्रिक मैंने लिया है, एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर क्या होता है कि अगर आपने कंपनी चलाने के लिए लेट से 100 रुपए का एसेट क्रिएट किया और आप 300 रुपए का रेवेन्यू साल में जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली एसेट टर्नओवर 3 हो गया, बिकॉज 100 रुपए के एसेट पे आप 300 रुपए का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिकली आप जितना ज्यादा टर्नओवर जनरेट करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपने 100 रुपए का एसेट लिया और आप 50 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, और 100 रुपए के एसेट पे आपको 5 रुपए का इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा, बिकॉज पूरा आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो एसेट टर्नओवर इंपॉर्टेंट है। अब एसेट टर्नओवर हम जानते हैं, लगता है कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन कितना ज्यादा हो और अच्छा है खराब है क्या है। तो ये जो मैंने किया है ना, तो ये डेटा लाने के पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने थोड़ी बहुत बेस्ड ऑन माय डोमेन नॉलेज थोड़ी सी फिल्टरिंग की। बिकॉज ये सारे मीट्रिक फाइनेंशियल्स में काम नहीं करेंगे, फाइनेंशियल्स का इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से काम करता है। तो मैं छोटी छोटी कंपनीज में स्टेबिलिटी ही नहीं होती, तो मैंने ना 100 करोड़ से कम के मार्केट कैप की कंपनी हटा दी। मैं उसको स्टडी ही नहीं करना चाहता, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। कंपनीज यहाँ लास्ट 5 साल में 2 से ज्यादा साल कंपनी ने लॉस कमाया है, मैंने वो भी हटा दिया, बिकॉज वो बहुत ही अनस्टेबल है, मैं नहीं देखना चाहता। मैं स्टेबल कंपनीज में रहना चाहता हूँ। हमें पता है कि मेटल सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर बहुत साइक्लिक होता है, तो मैंने वो भी हटा दिया। तो ये सब करके जब मैंने हटाया, उसके बाद मेरे पास 688 688 यूनिक कंपनीज आई जो मेरे स्टडी में दायरे में थी। और ये कंपनीज का डेटा मेरे पास 2003 से 2018 2019 तक का है। तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट के, और मैंने क्या किया ना, मैंने माना है कि हर मार्च एंड पे मैं एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रखूंगा कि हर साल के 1 अप्रैल को क्या मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। तो जब 688 कंपनीज का मैं पूरा ईयरली डेटा लेता हूं, तो मेरे पास 4608 इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 साल का कैगर, अगर आप हर कंपनी में हर साल इस 88 कंपनीज में इन्वेस्ट करते, तो आपको ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न मिला है। आप देखोगे तो मार्केट का, अगर आप पिछले 15-16 साल का, 18 साल का रिटर्न देखोगे तो वो 14% का रहा है। और बिकॉज मैं थोड़ा यहाँ पे क्वालिटी कर रहा हूँ, लॉस मेकिंग कंपनीज हटा रहा हूँ, लो मार्केट कैप बहुत ज्यादा हटा रहा हूँ, तो 2-3% का मेरे को एडवांटेज मिल रहा है। तो ये मेरा एवरेज रिटर्न है। अब मैं देखूं कि ये जो मीट्रिक है एसेट टर्न, इसमें ना मैंने एक कॉन्सेप्ट होता है बिनिंग। बिनिंग क्या है कि अगर आपका एसेट टर्न 0 से 10 के बीच में है, तो मैंने बिन्स क्रिएट किए। 0 से 0.25 का, 0.25 से 0.5 का, 0.5 से 1 का, 1 से 2 का। फंडामेंटली अगर आपका एसेट टर्न 1 से ज्यादा है तो डिसेंट है, और 2 से ज्यादा को बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए मैंने 2 से ऊपर को एक ग्रुप में कर दिया है। और ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर बताता है कि इस बकेट में, जिस बकेट का एसेट टर्न 2 से ज्यादा था, अगर आपने उस बकेट में लेट से कि 50 कंपनीज आई, अगर आपने उस 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तो आपका एवरेज 3 साल का कैगर रिटर्न क्या है, जो 23% है। तो अगर आप देखो तो दिस लुक्स लाइक अ वेरी गुड कोरिलेशन। जहां आप 1 से 2 या 2 से ऊपर कर रहे हो तो आपका रिटर्न हाई है, बट जैसे जैसे आपका एसेट टर्न घटता जा रहा है, आपका एक्सपेक्टेड 3 साल का रिटर्न घटता जा रहा है।
और अगर आपका एसेट टर्न 0.5 से कम है तब तो आप 8% का 7% का एफडी रिटर्न भी जनरेट नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि जिन कंपनीज का एसेट टर्न कम होता है, अगर आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत लो है। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने फंडामेंटल रिसर्च पे बहुत श्योर हैं, बिकॉज आपका रिटर्न अगर आप देखो तो 1/3 हो जाता है। आप यहाँ इन्वेस्ट करो वर्सेस यहाँ कर रहे हो, अगर आप जेनरिक प्रोबेबिलिटी में बात करो तो ये 1/3 हो जाता है। तो दिस इज जस्ट वन व्हिच कैन शो कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ वेल्थ डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा हैं और यहाँ वेल्थ क्रिएशन के चांसेस ज्यादा हैं। बट एसेट टर्न बस एक ऐसा मीट्रिक हो गया। एक और चीज हाईलाइट कर रहा हूं मैं, अगर आप ओवरऑल देखो तो ओवरऑल मार्केट में ऑलमोस्ट 46% कंपनीज 15 साल की हिस्ट्री पे 10% से कम का रिटर्न देती हैं ऑन अ 3 ईयर बेसिस। दैट मीन्स कि ऑन अ रैंडम बेसिस आधी कंपनी आपको एफडी से कम रिटर्न देने वाली है। ये तो निगेटिव है, अगर इसका आप मीन -5% रख लो और 0 to 10% का 5, तो ऑलमोस्ट 48% कंपनी जीरो रिटर्न देती हैं। तो सबसे पहले तो पैसा बनाना रैंडम एक्सरसाइज नहीं है, बिकॉज रैंडमली एवरी 2 यू पिक 1 कंपनी तो पैसा 0% बनेगा। अगर मैं ये जाके ना, अगर ये बकेट देखिए कि ये टूल्स कैसे ब्यूटीफुली काम करते हैं, मैं ना इस बकेट को चूज कर सकता हूं। मैं इस बकेट को अगर चूज करता हूं तो ये सारा डेटा अपने आप रिफ्रेश हो रहा है। ओके, लेट मी जस्ट वो, हाँ। सो अब देखिए तो बाकी जो बार्स हैं वो ग्रेड आउट हो गए हैं और ये जो बार है 7% रिटर्न वाला ये यहाँ आ गया है। और इसमें आपको 655 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आए थे जिसने सिर्फ 7% का रिटर्न दिया। लेकिन आप ये जो देखेंगे नेगेटिव और 0 to 10 ये बढ़ के 61% हो गया। तो जो 46% था ओवरऑल पॉपुलेशन, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 61% कंपनीज आपको 0% रिटर्न देने वाली है। सो इतना डेंजरस है यहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो आई शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज जहां ये रेशियो इस वैल्यू के नीचे है। तो ऐसे में और भी 3-4 मीट्रिक हैं। रिसीवेबल एक मीट्रिक होता है, उसका मतलब ये होता है कि पैसा अभी आया नहीं है कैश में, लेकिन मैं अपने रेवेन्यू में उसको पीएनएल में दिखा रहा हूँ। तो मेनी टाइम्स क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, पीएनएल ग्रोथ इतना हुआ, इतना रेवेन्यू है, 20% ग्रो हुआ। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना ग्रो कैश ग्रोथ है या वो अकाउंटिंग ग्रोथ है। तो अगर रिसीवेबल्स ज्यादा है तो वो सिर्फ अकाउंटिंग ग्रोथ हो सकता है, वो कैश ग्रोथ नहीं हो सकता। तो एक और मीट्रिक है कि मेरा जो रिसीवेबल्स है वो मेरे सेल्स का कितना परसेंटेज है। अगर वो 0% है मतलब वो पूरा सेल्स एक्चुअल कैश सेल्स है। अगर वो बहुत ज्यादा है दैट मीन्स कि वो बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एक्चुअली पैसा आया नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि रिटर्न को रिसीवेबल्स एज ए रेशियो ऑफ सेल्स कैसे इंपैक्ट करता है, तो अगर आपका रिसीवेबल्स 30% से ज्यादा होने लगे तो फिर आपके रिटर्न के चांसेस कम है। इट डजंट मीन कि हर कंपनी ही 9% का रिटर्न देगी। ये जो ये बास्केट का मीन रिटर्न है, हो सकता है कुछ कंपनीज हो जो ज्यादा देती हो, बट ओवरऑल बास्केट का रिटर्न 9% है। जैसे फार्मा कंपनीज आप देखो जो यूएस में सप्लाई करती हैं, उनका रिसीवेबल्स रहता है बिकॉज एक्सपोर्ट किया, सामान दिया, थोड़ा टाइम लगता है। तो हो सकता है फार्मा कंपनीज आपको 13% का रिटर्न दें, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जिसका बैलेंस शीट क्वालिटी बहुत वीक होगा। और एज ए बास्केट अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक का रिसर्च नहीं आता तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो अगर कंपनीज जिनका रिसीवेबल्स 30% से नीचे है उनका रिटर्न रिलेटिवली बहुत डिसेंट होता है। तो बहुत चीजें हैं जो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे भी कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ये बास्केट थोड़ा सा हल्का कम है, बट ये भी डिसेंट बास्केट है जो 17% का रिटर्न दे रहा है। तो लाइक वाइज एक मैं आपको लास्ट मेट्रिक दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे मेट्रिक हैं जिनका रिलेशन है रिटर्न से। मैं एक आपको लास्ट मेट्रिक दिखाता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल, बिकॉज हर कोई कहता है कि वी शुड इन्वेस्ट इन कंपनीज विद वेरी हाई रिटर्न ऑन कैपिटल। सो अब रिटर्न ऑन कैपिटल की स्टोरी ये है कि अगर आप अप टू 12% देखो तो रिटर्न्स लो हैं और 12% से ऊपर में रिटर्न्स हाई हैं। बट वंस यू क्रॉस दैट 20% रिटर्न, उतना ज्यादा मैटर नहीं करता रिटर्न ऑन कैपिटल। सो इट इज नॉट ए लीनियर रिलेशनशिप। रिटर्न ऑन कैपिटल 12% से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ये जो बकेट है और ये जो बकेट है इसका डिफरेंशियल विजिबल है। बट
इसमें कुछ खास डिफरेंस मेरे को दिखा नहीं। तो आई एम नॉट ए बिलीवर कि रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा होना चाहिए। आई एम लाइक कि हाँ 15% से ऊपर है तो मेरे को चलेगा, बिकॉज फिर बाकी अलग अलग जो पैरामीटर्स है ना उनका भी कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये हाईलाइट करता है एक पैरामीटर कितना कंट्रीब्यूट करता है। एसेट टर्न एक परफेक्ट कोरिलेशन था, बट रिटर्न ऑन कैपिटल बियॉन्ड 12% उतना परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो मैं अगर ये सारी चीजों को मिलाऊं ना, और मैं एक नॉर्मल सा रूल बना रहा हूँ, मैं भी कोई एल्गोरिथम किसी चीज में नहीं जा रहा हूँ। मैंने ना ऐसे ऐसे 6-8 अच्छे मीट्रिक उठाए जहां अच्छे अच्छे पैटर्न थे, एंड आपने देखा कि ओवरऑल इस बास्केट का जो अपने आप में एक फिल्टर्ड क्वालिटी बास्केट है, बिकॉज मैं बहुत सारी कंपनीज को हटा रहा हूँ, 17% का रिटर्न था। बट अगर मैं ये सारे फिल्टर्स लगाता हूँ, एसेट टर्न्स में 2 से ऊपर वाली कंपनीज चूज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल में 12% से ऊपर वाली कंपनीज चूज कर रहा हूँ, रिसीवेबल्स में 40% से ऊपर वाली कंपनीज छोड़ रहा हूँ, 30% या उससे नीचे वाली चूज कर रहा हूँ। और एक और वैल्यूएशन मीट्रिक है, हमने वैल्यूएशन डिस्कस नहीं किया, तो एक वैल्यूएशन मीट्रिक है इंटरप्राइज वैल्यू टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो मैं जो हाईएस्ट बास्केट है सबसे कॉस्टली वाला वो हटा रहा हूँ। अगर मैं वो चूज, जब मैं ये 4-5 फिल्टर लगा रहा हूँ ना, तो हमारे जो 6000 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे वो घट के हो जा रहे हैं 114। इसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ ईयर देखो तो ऑलमोस्ट आपको 15 साल के ईयर में आपको 115 ऑप्शन, मतलब हर साल आपको 7-8 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिल रहे हैं। और इस बास्केट का जो रिटर्न है 3 साल का कैगर, ये 29% का है। तो बेसिकली आप 14% से 17% पे जंप किए बाई नॉर्मल फिल्टरिंग आउट, एंड फिर ये एनालिसिस किया आपने और आप 17% से 29% पे जंप कर गए। और ये जो आपको ईयर बाय ईयर भी दिखा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि लक है कि एक साल में पैसा बना है, ये हर ईयर का रिटर्न दिखा रहा है कि ये जो 114 ऑप्शंस आए उसमें से कितने ऑप्शन 2003 में आए, कितने 13 में आए, 14 में आए, और उनका एवरेज रिटर्न क्या रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बस 2 साल में निगेटिव रिटर्न बने हैं, 2011 में और 2006 में। रीजन ये है कि 6 के बाद आपको 9 आया और 8 में आपका आ गया रिसेशन, तो जो भी बना था वो निकल गया। और 11 इसलिए है कि 11 में रिबाउंड हुआ मार्केट, लेकिन फिर वो 13 का टाइम आया जहां कुछ पैसा नहीं बना, 11 से 14 और 14 के बाद रिबाउंड हुआ। लेकिन अगर आपने पीक ऑफ पेसिमिज्म पे इन्वेस्ट किया जैसे 2003 में या फिर आप 2014 में, तो आपका इनफैक्ट 50-60% रिटर्न बना है। तो आप जनरलाइज भी देखो तो ये बहुत ही डिसेंट 25% से ऊपर का रिटर्न है अगर आप 8-9 बेसिक रूल्स फॉलो करते हो। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हर कोई कहता है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, कोई कहता है डाइवर्सिफाइड में भी पैसा बनता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द क्लस्टर, कि कौन सा क्लस्टर पैसा नहीं बनाता है और कौन सा क्लस्टर पैसा बनाता है। एक बार आपने क्लस्टर वो आइडेंटिफाई कर लिया जहां पैसा बनता है, मे बी 2-4% कोई ज्यादा बनाएगा कोई कम बनाएगा, बट ओवरऑल आप डाइवर्सिफाइड रहो या 20-30 कंपनी में भी हो, जब तक आप अच्छे वाले क्लस्टर में हो ना, डिसेंट पैसा बनेगा। तो ये सारे जो इनसाइट हैं इसको मैंने एक पीपीटी के एक स्लाइड में यहाँ कैप्चर किया है, जहां आप देख सकते हैं कैसे कैसे पैटर्न्स हैं फॉर एसेट टर्न जो मैंने आपको दिखाया, रिसीवेबल सेल्स रेशियो दिखाया, वर्किंग कैपिटल मैंने दिखाया नहीं बट उसका भी अच्छा रिजल्ट आया, रोसी का दिखाया, सेल्स ग्रोथ पीएनएल का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, एंड वन रीजन कुड बी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो पीएनएल अकाउंटिंग तरीके से ग्रो करती हैं जहां एक्चुअली ना कैश प्रॉफिट आ नहीं रहा है, तो इसीलिए मे बी ये नॉर्मलाइज हो जा रहा है, बट डिसेंट प्रॉफिट है। इसमें भी आप देखेंगे तो लेस देन जीरो का सबसे लोएस्ट है, बट बहुत हाई प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आई एम गेसिंग द चांसेस आर मे बी, या तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अनाप शनाप ग्रोथ दिखा रही हैं, एक्चुअली कैश प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा, या फिर ये ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो ग्रो कर रही थी, बट जो जितना ज्यादा ग्रो करता है वहीं सबसे ज्यादा कंपटीशन भी आता है। तो जो स्लो एंड स्टेडी ग्रोअर हैं 10-15%, 20% ग्रोथ, वहां मैक्सिमम पैसा बना है। तो these are some of the insights and this is what we should take care in mind. एंड फाइनली जब हम एक रूल बनाते हैं तो ये हमारा रूल है, अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं along with the initial filtering कि मैं 100 करोड़ से नीचे नहीं करूंगा, कमोडिटी में नहीं करूंगा, तो विथ द सिंपल रूल हिस्टोरिकली 29 बना है, फ्यूचर में भी इतना नहीं बने, इससे कम बने, बट रिलेटिवली जो भी बनेगा लगता है उससे बेटर रिटर्न बनेगा इफ यू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ, basically it's a principle of good asset utilization, good return on capital, cash profit generation, good balance sheet, respecting to valuation, these are the things. So ये मेरा पहला केस स्टडी था जहां सिंपली डेटा का यूज करके, और हम लोग जॉब करने वाले आदमी, हम बहुत ज्यादा ना रिसर्च पे 1000 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट अगर डेली नहीं भी पढ़ सकते हैं तो भी हम इस तरह का एक क्वांट्स पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो इंडेक्स को बीट कर सके। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें सौरभ,
कि आप ये फिल्टर करके आपने 115 कंपनीज निकाले, राइट? या या तो अब इसमें से 115 कंपनी में किस कंपनी में इन्वेस्ट करना और कब करना, ये डिसीजन कैसे ले? हाँ, सो ये जो 115 कंपनीज अगर आप देखिएगा तो ये 15 साल के डेटा पे आई हैं, ठीक है? हम्म। ये 15 साल के डेटा पे आई हैं। तो सबसे पहले आपका एक साल में ऑप्शंस बहुत कम है, एक साल में आपका ऑप्शन 8-10 से ज्यादा नहीं है। एंड देन इट्स अ हम्म। ट्रेड ऑफ। अगर आपको 50% का रिटर्न चाहिए तब आप ये कि कंपनी घट के 50 पे आ जाएंगे, फिर आपको एक साल में 4 से ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए और आपके पास रिटर्न भी होने चाहिए। तो एक आपका अगर कंफर्ट 15 कंपनी में मिनिमम आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो आपका रिस्क का पोर्टफोलियो एक्सपोजर का आपके अपने रूल्स हैं कि आप 5% ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, तो आप थोड़े हम्म। लीनियंट हो जाइए। तो एक तरीका वो है कि आप इक्वली इसमें डाल दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप वेटेड बास्केट भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। उसमें आप क्या करते हैं ना कि आप इसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं जहां आप इसको क्वांटिफाई करते हैं। तो ये रिग्रेशन एक टेक्निक होती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे आपके क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट आए, आप देखिएगा ये लोग रिग्रेशन ये सब बहुत यूज करते हैं। रिग्रेशन में हम्म। क्या होता है ना कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि बैंगलोर में लेट्स से कि कोरमंगला एक जगह है, कोरमंगला में मैं 3 BHK का कितना रेंट दूं। तो हम हम्म। क्या करते हैं कि हम 50 घर देखते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, फिर हमारा एक मेंटल मॉडल बनता है कि अगर हम्म। ए टायर है, बिल्डर है, 2000 स्क्वायर फुट का एरिया है, स्कूल बगल में है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो मैं 30,000 दूंगा। लेकिन अगर टायर भी बिल्डर है और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो 20,000 दूंगा। बेसिकली हम्म। आप मेंटली कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिग्रेशन क्या करता है कि उस शहर के हजारों प्रॉपर्टीज को लेता है और वैसे ही उसको एक मॉडल में डालता है। और हम जो सोच रहे हैं ना कि 2 BHK को मैं इतना दूंगा, 3 BHK को इतना दूंगा, ट्रांसपोर्ट को इतना दूंगा, तो सबका हम्म। वेटेज निकालता है कि इस फैक्टर का फाइनली मेरे अल्टीमेट वेरिएबल पे कितना इंपैक्ट है। तो अगर आप उसी चीज को यहाँ रिटर्न में लीजिए तो 3 ईयर रिटर्न आपका रेंट हो गया और ये सारे फैक्टर हो गए, स्कूल पास में है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है। तो आपका हम्म। रिग्रेशन नहीं कि मैथमेटिकल इक्वेशन देता है जिसमें हर फैक्टर का वेटेज अवेलेबल होता है और हर इन्वेस्टमेंट पॉइंट के लिए आपको एक रिटर्न प्रेडिक्ट होके आता है। आप उस रिटर्न्स को सॉर्ट कर लीजिए और मे बी आपका जो टॉप 20 रैंक है आप उसमें वैसे पैसे लगाइए, और उसमें भी आपका रिटर्न टॉप 20 जो रैंक है, अगर आप उसको डिफरेंशियली वेटेज करना चाहते हैं तो जितना ज्यादा जिसमें रिटर्न दिख रहा है उसमें आप उतना ज्यादा पैसे डालिए। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि आप हर इस फैक्टर को, ये जो मैंने बताया, आप इक्वल वेटेज दे दीजिए और इसके बेसिस पे आप एक रैंकिंग सिस्टम क्रिएट कर लीजिए। जैसे मैं इस पे एक 1 to 10 का स्कोर डाल दूं, इस पे 1 to 10 का स्कोर डाल दूं, और मैं एक फाइनल स्कोर निकालूं हर कंपनी का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का, और जहां सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा है वहां मैं ज्यादा वेटेज दूं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं हम कैसे डिफरेंशिएटेड एलोकेशन कर सकते हैं। और उन स्टॉक में एग्जिट कब करेंगे? हाँ, सो यहाँ अब डेटा में प्रॉब्लम क्या है ना कि हर चीज अपने आप में एक हाइपोथेसिस होती है। तो ये जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई है बाई का है, अगर आप देखें, और मैंने ये फिक्स मान लिया है कि मैं 3 साल के बाद एग्जिट करूंगा। सो एग्जिट हम्म। कैसे करें ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग रिसर्च चाहिए होता है। अब माइंड सेंसेस एग्जिट तब करें जब आपका स्टॉक इन सारे रूल्स को ब्रेक करने लगे। जैसे अगर वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाए या कुछ बिजनेस में फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं कि उसने ऐसा किया कि उसका एसेट टर्न, ये इतना इजी नहीं होगा। एसेट टर्न नीचे जा सकता है मे बी बिकॉज बड़ा कैपेक्स हुआ है, फिर आपको देखना होगा कि ये कैपेक्स भी एसेट टर्न मेंटेन करेगा या नहीं। तो एक तो ये तरीका हुआ कि ये रूल्स फॉलो होने बंद हो गए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। दूसरा तरीका हुआ कि मार्केट को भी मैं एनालाइज करूं, बिकॉज करेक्शन 3-4 तरीके से होती है। एक, कंपनी हम्म। खराब करने लगे जो इस रूल्स को फॉलो करना छोड़ देगी। दूसरा, हम्म। सेक्टर खराब करने लगे, तो फिर मैं आऊंगा, मेरा जो दूसरा पार्ट है इंडेक्स का, वहां हम उसको टच करेंगे। और तीसरा, अगर मार्केट ही ओवर वैल्यूड हो जाए, तो कैसे जज करते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, कैसे जज करते हैं कि सेक्टर ओवर वैल्यूड है। सो उसके भी हम्म। डेटा से वो सब भी निकाला जा सकता है, और मैं नेक्स्ट केस स्टडी में दिखाऊंगा। एंड दोज आर द टाइम्स व्हेन वी शुड टेक सम प्रॉफिट होम। मैं मानता हूं कि आई डोंट बिलीव इन बाई एंड होल्ड except very selective companies. Most of the companies are cyclic and most of the companies go through boom and bust. So I always believe कि जब एक लेवल आए तो पार्शियल प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम्म। लास्ट 4 साल में मुझे कुछ किसी चीज सेव किया है तो ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ने सेव किया है। तो वो भी हम हम्म। देखेंगे अगले एक स्टडी में। ठीक है, वो दिखाइए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अब हम आते हैं, और आपने पूछा था कि म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है। सो वो मैं दिखाता हूँ।
सो अगेन ये करने का मोटिव कहाँ से आता है? तो मोटिव आता है हमेशा जो फ्रेंड्स व्हाट्सएप में ट्वीट का पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे देखते हैं। मेनी टाइम्स वी हियर बाई दैट बफेट जी का बाई व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ऑप्टिमिस्टिक। बट कैसे पता चले? बिकॉज सोशल मीडिया का एक प्रॉब्लम ये है कि 5% गिरा नहीं कि हर कोई कहता है कि ओवर वैल्यूड है, 5% गिरा नहीं कि हर कोई कहता है इंटरेस्टिंग हो गया। तो बहुत सारे बायसेस क्रिएट हो गए। एंड आई बिलीव कि हम जो सैंपल देखते हैं, कितने लोग ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग हैं, आर दे those 100 people the best of 100 people or worst of 100 people, or are they a good mix of overall population? So मेरे को वो सब bias लगता है। तो I always try to go back at data and then try to check all this hypothesis and see कि मार्केट को टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये जो SIP है, SIP हर महीने पैसा डालना सेंस बनता है या नहीं बनता है? तो विथ ऑल दिस हाइपोथेसिस आई स्टार्टेड दिस एनालिसिस एंड दिस इज अगेन अ सेपरेट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को मैंने इस पावर BI फाइल में रखा है। और यहाँ भी मैं आपको एक दो बहुत छोटे छोटे बट बहुत पावरफुल इनसाइट दिखाऊंगा, और मैं इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा कि आप खुद देख सकते हो रिटर्न्स कैसे वेरी कर रहा है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट जो है, ऊपर का जो चार्ट है, इसमें ये जो बार है, ये बार बताता है कि इंडेक्स में, और इधर आप देखो तो मैंने लार्ज मिड स्मॉल कैप कंपनीज बनाई है। तो हाँ, उससे पहले अगेन डेटा का बैकग्राउंड, डेटा कहाँ से आएगा? ये जो एनालिसिस है, ये इंडेक्स का एनालिसिस है। अभी आपने देखा होगा मोतीलाल ने इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हैं, और इंडिया में इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट न्यू है। अगर आप यूएस का फंड मार्केट देखिएगा तो मोर देन 50% पैसा इंडेक्स फंड्स में लगा होता है। तो आइडिया ये था कि क्या मैं इंडेक्स फंड को एनालाइज करके इंडेक्स फंड में एक एल्गोरिथम बनाऊं और जो SIP इंडेक्स है उसको बीट कर सकूं, वो आइडिया था। तो इंडेक्स फंड के लिए डेटा क्या चाहिए मैंने यूज किया? मैंने प्योर ट्रेड डेटा यूज किया है। हर कंपनी का डेली जो ओपन क्लोज प्राइस होता है, वही सब मैंने यूज किया है। कितना वॉल्यूम में ट्रेड हुआ, कितने शेयर ट्रेड हुए, कितने करोड़ रुपए का शेयर ट्रेड हुआ, ये ट्रेड डेटा। भाव कॉपी जो NSE पे भाव कॉपी डेटा कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा भाव कॉपी डेटा है। इसमें एक चैलेंज आया था मुझे। चैलेंज ये था कि बहुत सारे इंडेक्स आप देखिएगा, ये इंडेक्स 3-4 साल पहले शुरू हुए हैं, कोई 10 साल पहले शुरू हुआ है। और आज के डेट में क्या लार्ज कैप स्टॉक है वो आपको मिल जाएगा कि हाँ, ये 50 लार्ज कैप है, ये 50 मिड कैप है। बट अगर मैं 15 साल का डेटा एनालाइज कर रहा हूं, तो 15 साल पहले क्या लार्ज कैप था और क्या मिड कैप था, कैसे पता चले? तो मैंने क्या किया है कि मैंने बेसिकली थ्योरी ली है कि हाँ, NSE BSE जिसने भी इंडेक्स बनाया वो कैसे डिफाइन कर रहा है। और मैं फिर 10 साल 15 साल पहले डेटा में गया हूँ, और बेसिकली या तो मार्केट कैप बेसिस पे होता है या रैंकिंग बेसिस पे होती है। कि आप मार्केट कैप पे रैंक कर लीजिए, और दो तरह के स्मॉल कैप इंडेक्स होते हैं। एक होता है कि आपका टॉप बॉटम से आई थिंक आपका जो बॉटम का 15% हो गया वो स्मॉल कैप में जाएगा। दूसरा हो गया कि जैसे मोतीलाल जो फॉलो करते हैं कि आप मार्केट कैप से रैंक और 251st पोजीशन से 500 पोजीशन तक ये जो 500 कंपनीज आई, ये स्मॉल कैप में आएंगी। तो बेसिकली मैंने वही लॉजिक लगाया, और उस तरीके से मैंने पिछले 15 साल का एक लिस्ट बनाया कि कौन सी कंपनीज लार्ज हैं, कौन सी मिड है, कौन सी स्मॉल है, और वो टैगिंग की है, और वो टैगिंग यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ आप चाहो तो आप लार्ज कैप भी सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका पावर एनालाइज करने का कितना बढ़ रहा है, आप एक बार में इतनी सारी चीजें कर रहे हो। आप चाहो तो बस 10 साल का कर सकते हो, 15 साल का कर सकते हो इस फिल्टर। तो द मोर वेरिएबल्स यू हैव, द मोर यू कैन स्लाइस एंड डाइस। इसमें मैंने सेक्टर ऐड नहीं किया। अगर आप चाहो तो सेक्टर्स के अपने इंडेक्स बना सकते हो और कर सकते हो। तो ऐसे डेटा प्रिपेयर हुआ, और ये पूरा फ्री का डेटा है। आप NSE पाई पैकेज यूज कीजिए, डेटा सारा पुल कीजिए 15-20 साल का। डेटा बहुत ही ह्यूमंगस होता है, ऑलमोस्ट ये 25-30 लाख रोज में डेटा जाता है। अब मैंने क्या किया ना कि मैं डेली लेवल पे नहीं करना चाहता था, बिकॉज अगेन मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूं, मैं डेली लेवल पे ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मैं साल में 3-4 अच्छे इन्वेस्टमेंट करूं, जहां साल में मैं 3-4 बार इंडेक्स में पैसे डालूं और 1-2 बार पैसे निकालूं। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो मैंने क्या किया, जो डेली लेवल का डेटा था इसको मैंने मंथली लेवल पे एनालाइज किया। तो लेट्स से कि लार्ज कैप में मेरे पास 50 कंपनीज हैं। अब मैंने 50 कंपनीज का जो क्लोज प्राइस था मंथली लेवल पे, उनका टोटल शेयर जो ट्रेड हुआ मंथली लेवल पे, सारा एग्रीगेट करके टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड सबको एग्रीगेट किया मंथली लेवल पे। और उसके बाद मेरे पास लेट्स से 15 साल में 15 इंटू 2 180 डेटा पॉइंट्स आए हर मंथ के। और 180 डेटा पॉइंट, 3 टाइप्स ऑफ कैप्स, लार्ज मिड स्मॉल। सो 180 इंटू 3 मेरे पास 540 रोज बने। उन 540 रोज का ये KPIs है। जैसे जनवरी 2013 स्मॉल कैप में कितने परसेंट कंपनीज ने 52 वीक हाई बनाया है, कितने परसेंट कंपनीज ने 52 वीक लो बनाया है,
तो अगर आप पिछला केस स्टडी देखिए, वहां रोसी और डेट इक्विटी वो सब मीट्रिक था। अब यहाँ मीट्रिक बन गया है इन ए गिवन मंथ फॉर ए गिवन मार्केट कैप इंडेक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ कंपनीज मेड 52 वीक हाई, कितने करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हुई। तो ये मेरे मीट्रिक्स बन गए। तो ये जो पहला चार्ट है ऊपर का, ये कहता है कितने परसेंट कंपनीज ने उस इंडेक्स में उस महीने में हाई 52 वीक हाई बनाया है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत सारी कंपनीज 52 वीक हाई बनाती हैं, और यही हुआ है 2004 से 6 में। 40% से ऊपर कंपनीज ने इस इंडेक्स में 52 वीक हाई बनाया इस महीने में, 60% से ऊपर कंपनीज ने बनाया। और जब मार्केट क्रैश होता है तो कंपनीज 52 वीक हाई बनाने वाली बहुत कम हो जाती हैं। और इसी का उल्टा होता है 52 वीक लो बनाने वाली कंपनी में। जब मार्केट बुल मार्केट में है, बहुत ही कम कंपनीज 52 वीक लो बनाती हैं, और जब बियर मार्केट आता है बहुत ही कम कंपनीज 52 वीक हाई बनाती हैं। तो ये रिवर्स बिहेवियर है। तो ये तो हमने एनालाइज किया कि हाँ, जब कंपनीज बियर हुआ, लेकिन इसको हम यूज कैसे करें। तो मैं एक नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ। यहाँ मैंने एक सिमुलेशन किया है, ठीक है। ये जो सिमुलेशन है ये क्या करता है, मैंने यहाँ स्मॉल कैप चूज किया। मैंने 2005 से 2018 का डेटा चूज किया, बिकॉज स्मॉल कैप का इंडेक्स 2005 से है। ये जो आप फिल्टर देख रहे हो, ये हाई परसेंटेज 52 वीक हाई परसेंटेज का फिल्टर है। और ये जो फिल्टर है ये 52 वीक लो परसेंटेज का फिल्टर है। तो मैं चाहूं तो अब इस फिल्टर पे खेल सकता हूं। तो लेट्स से कि मैं एक सिनेरियो बना रहा हूं। तो ये जो 2005 से 2018 का डेटा है और ये मंथली डेटा है, तो हर महीने आपको साल में 12 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिले। तो बेसिकली आपको 156 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिले हैं, जिसने 12.68% का रिटर्न दिया है। अगर आप देखो तो वही मीन रिटर्न है। अब लेट्स से कि मैं थोड़ा अलग खेलना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं वो इन्वेस्टर हूँ जो बुल मार्केट में घुसता है एकदम जब हर कोई एक्साइटेड है। तो मैं तब घुस रहा हूँ जब कंपनीज खूब सारी 52 वीक हाइस बना रही हैं। तो लेट्स से मैं मार्केट में तब घुसा जब मोर देन 20% कंपनीज ने 52 वीक हाई बनाया, 21 लिया है, और बहुत सारी कंपनीज, बहुत कम कंपनीज ने 52 वीक लो बनाया। सो लेट्स से कि मैं तब घुसा, तो ये जो मेरा 12% का रिटर्न था, ये रिटर्न 2-3% घट गया। अगर मैं और एग्रेसिव और ज्यादा मैं लास्ट में आ रहा हूँ, लेट्स से कि मैं ऐसे साइन टाइम पे घुसा, तो मेरे पास जो 150 ऑप्शंस थे, सो बहुत मेरे साथ 2007-8 में यही हुआ था कि वो जो 150 मंथली ऑप्शन थे, मैं ऐसे टाइम पे घुसा कि जब बहुत ज्यादा मार्केट ओवर वैल्यूड था। तो ये रिटर्न्स आप देखोगे तो 4% का रिटर्न हो गया है। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, मैं तब घुस रहा हूं जब सारी कंपनीज 52 वीक लो बना रही हैं, बहुत ही कम कंपनीज 52 वीक हाई बना रही हैं। सो ये रिटर्न 42 हो गया। बट इनफैक्ट आपको 14 साल में 14 ऑप्शन, बेसिकली आप साल में एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो। मे बी वॉरेन बफेट टाइप के लोग ऐसे ही करते हैं, वो 3-4 साल में एक बार आते हैं। बट लेट से कि मैं और ऑप्शंस बढ़ा दे रहा हूँ आपके, बिकॉज हम लोग सैलरी वाले आदमी हैं, सैलरी आती है, एसआईपी करना चाहते हैं। तो लेट से मैं साल में 2 ऑप्शन, 13 साल में 26, 2 ऑप्शन आए। आपका जो 12% का रिटर्न था ये बढ़ के 21% हो, 22% हो गया है। तो अगर हम एक सिंपल सा रूल फॉलो करें कि हम ये मीट्रिक करें, लेट्स से कि हमने डेटा ले लिया और हम एनएसई से एनालिसिस कर रहे हैं, हम हर महीने के एंड में बस ये रेशियो निकाल रहे हैं, कितने परसेंट कंपनीज ने 52 वीक हाई बनाया, कितने परसेंट कंपनीज ने 52 वीक लो बनाया, और उसके बाद मैं उस स्टॉक को होल्ड कर वो इंडेक्स खरीद रहा हूँ। और ये जो रिटर्न है ये है कि मैं हर 12 महीने के बाद बेच रहा हूँ। तो मैंने जो जनवरी 2019 में खरीदा, मैंने वो जनवरी 2020 में बेच दिया। जो जनवरी 2017 में खरीदा, वो जनवरी 2018 में बेच दिया। मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरा रिटर्न ऑलमोस्ट 12% से 22% का हो जा रहा है। सो दिस टेल्स कि कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है। तो अगेन इसमें बहुत सारी एनालिसिस किया मैंने, बट मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि बहुत, और जो एसआईपी की बात की आपने, और लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ही बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस है वॉलेटिलिटी का। तो ये ऊपर का जो चार्ट आप देख रहे हो, ये लार्ज कैप इंडेक्स का चार्ट है, और ये नीचे का जो चार्ट देख रहे हो, ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। और ये देखो तो ये आपका रिटर्न रेंज है। तो आपके पास जितने भी मंथ्स थे, उन मंथ्स में ऑलमोस्ट 31% मंथ्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लार्ज कैप में भी। और अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 46% मंथ्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो फॉर दिस, आई मीन ऑल फॉर द गुडनेस ऑफ एसआईपी, अगर आप एसआईपी कर रहे हो और स्मॉल कैप में कर रहे हो, तो 50% टाइम तो आपको नेगेटिव रिटर्न आने वाला है। तो काहे, आई मीन एफडी में क्यों नहीं पैसे डालो, काहे को नेगेटिव रिटर्न लो।
सो अगर आप इस बकेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो बकेट है जहां पॉजिटिव रिटर्न आया है, ये बकेट बहुत छोटा होता है, ये बकेट 15% का होता है। तो मतलब अगर साल में अगर आपके पास 12 महीने, तो 1 या 2 महीने ही होंगे जो आपको 20% का रिटर्न देंगे, विच अगेन गोज बैक टू द सिमुलेशन कि हमारे ऑप्शंस एक्चुअली कम होने चाहिए। सो दिस इज द होल क्रक्स। एंड ये रेशियो है कि अगर आप तब इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मोर देन 25% कंपनीज 52 वीक हाई बनाई हैं, एंड लेस देन 25 का मोर देन एंड 0 to 25% कंपनीज 52 वीक लो बनाई है। ऐसा 30% ऑफ मंथ्स में हुआ है और इसका रिटर्न सिर्फ 4% रहा है लार्ज कैप इंडेक्स में। बट अगर आप इसी को रिवर्स कर दो और आप तब पैसे लगाओ जब मोर देन 25% कंपनीज 52 वीक लो बना रही हैं, तो यही रिटर्न 4% से 17% का हो जाता है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ टाइम्स रहे हैं जब ये लॉजिक काम नहीं किया है, बिकॉज 2011 से 14 का जो साइकिल था ना, वो प्रोलॉन्ग बियर साइकिल था, जहां 2011 में ये कंपनीज जो थी ये पैसे फिर भी नहीं बना पाई। तो बट अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो, अगर आप 10 साल 12 साल इन्वेस्टेड हो और आप बार बार यही बिहेवियर कर रहे हो, तो वो सब नॉर्मलाइज होके आपको एक डिसेंट रिटर्न आएगा। स्टिल दिस इज 4x। एंड यही चीज आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखोगे तो ये 15x का वेरिएशन है, which says कि small cap is more volatile. We have to be more cautious in small cap, but at the same time, if we are able to time it, and वो जो आपने टेक्निकल और बिहेवियरल की बात की, वो यहाँ पे आता है कि ये जो पूरा एनालिसिस था टेक्निकल था, बट ऐसा करने के लिए जो हार्ट चाहिए वो आपका बिहेवियर है, कि आप 5 साल में बस 5-6 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो जब ये फेनोमेनन एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिटर्न 15x ज्यादा है। तो दैट इज व्हाट सेज कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप को कैसे खेलना चाहिए, स्मॉल कैप को कैसे खेलना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं कि स्टॉक स्टडी करो, आप इंडेक्स इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हो, एंड 50% ऑफ म्यूचुअल फंड्स दे डोंट बीट इंडेक्स रिटर्न। सो इफ यू कैन बीट इंडेक्स रिटर्न, दैट इटसेल्फ गिवन यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉई, अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो विथ मिनिमल एफर्ट, एंड दिस इज जस्ट वन रेशियो, एक्चुअली 2-3 और रेशियोज हैं, ये सब रेशियो लगा के आप थोड़ा और ट्वीक कर सकते हो। जैसे कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि बियर मार्केट में स्टॉक्स क्यों गिरते हैं, 20% 40% गिर रहा है, लोग डर जाते हैं। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो इसलिए गिरता है कि बुल मार्केट में वॉल्यूम भर भर के होता है और बियर मार्केट में कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, और बिकॉज वॉल्यूम नहीं है तो आपका इफेक्ट गिरने का ज्यादा होता है, और जब ऊपर जाता है तो सर्किट्स भी ज्यादा लगते हैं। तो यू हैव टू टेक ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन, एंड उसके बेसिस पे आप एक क्वांट्स मॉडल बनाओ, और बेसिकली आप रूल्स को फॉलो करो। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे जो ट्राइड एंड टेस्टेड है बुल मार्केट बियर मार्केट साइकिल पे 15-20 साल में, तो इट विल डू डिसेंट, बिकॉज इट रिमूव्स ऑल द ह्यूमन बायसेस। सो दिस इज वन फॉर इंडेक्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक में घुसना भी नहीं चाहते हो, इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये था दूसरा केस स्टडी। सौरभ, जनरली एल्गो ट्रेडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो एल्गो इज ऑलवेज सिंबॉलिक ऑफ ट्रेडिंग, कि कैसे आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हो मार्केट में एल्गो को यूज करके, क्वांट मॉडल्स को यूज करके। बट इन्वेस्टमेंट के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज करके टाइमिंग करना कि कब आप इन्वेस्ट करो, ये मैंने भी पहली बार देखा है। एंड इट्स सच अ कमेंडेबल, it's such a nice experience for me to look at the way you are approaching it. जस्ट एक बात मुझे बताइए, तो इसका मतलब you also wait for the right time when your model will suggest, so you don't do SIP? नो, आई डोंट डू एसआईपी, एंड आई विल टेल यू, मैंने लास्ट एक सितंबर में किया था इन्वेस्ट इंडेक्स में, और उसके बाद मार्च में किया। ये 2 महीने पिछले 1.5 साल में, ये पिछले 1 साल में, ये 2 महीनों में मैंने इन्वेस्ट किया है। और आपने इन्वेस्ट क्यों किया ये 2 महीने में? क्योंकि आपका मॉडल बोल रहा था कि दिस इज द राइट मॉडल बोल टाइम रहा टू। था, अगर आप सितंबर अक्टूबर का डेटा उठाओगे और आप मार्च का डेटा उठाओगे, एंड यू चेक द परसेंटेज ऑफ कंपनीज मेकिंग 52 वीक हाई लो, यू विल गेट दैट, प्लस द वॉल्यूम आल्सो। सो एक्चुअली आई डिडंट वांट टू डिस्कस, सो बेसिकली मैंने इसको आगे ले जाके एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाया है, और उस एल्गोरिथम में 5-6 पैरामीटर्स आते हैं और फिर एक स्कोर आता है। तो बेसिकली मैं उन 5-6 पैरामीटर्स को ट्रैक करता हूँ, और जब भी वो स्कोर मेरे इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है, उस महीने मैं खरीदता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खरीदता हूँ। सो आई मेंटेन अ सेपरेट इंडेक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या बात है, व्हाट अ प्रोसेस। सो यू आर टाइमिंग द अगर सर आप मार्केट। देखो तो इसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं एक्चुअली। अब इसमें मेरा चैलेंज ये है कि मैं लार्ज कैप में कितना डालूं, मिड कैप में कितना हाँ, डालूं, यही स्मॉल कैप मेरा में कितना क्वेश्चन था, डालूं। यही मेरा क्वेश्चन होने वाला था कि आपने मार्केट का तो व्यू बना लिया, बट किस स्टॉक में कितना डालना है, किस सेगमेंट को कितना डालना है, ये कैसे निकालते हो आप? So I will tell you, and frankly, I don't have a foolproof solution right now, because the challenge of machine learning is ना, हर चीज अपने आप में एक हाइपोथेसिस है। So हम
अच्छा होता है कि अगर हम दो हाइपोथेसिस को एक साथ मिला के एक सॉल्यूशन निकाल लें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो नहीं पाता है। तो ये मैंने अभी तक किया नहीं है, बट मोस्टली मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मेरा स्कोर आता है ना, तो मैं लार्ज, मिड और स्मॉल का तीनों का स्कोर कंपेयर करता हूँ, और जहां पे भी वो स्कोर ज्यादा है मैं उस हिसाब से वेट करता हूँ। अब ये काम नहीं भी किया है लार्ज कैप। माई सेंस वाज कि अगर हम हिस्टोरिकली डेटा देखें तो 3 साल 4 साल से ज्यादा कभी भी ऐसा पीरियड नहीं रहा है कि जो डाइवर्जेंस होता है लार्ज कैप और स्मॉल कैप का, ये डाइवर्जेंस मेंटेन रहे। बेसिकली वो जो मीन टू रिवर्शन है ना, डेटा में ने भी दिखाया कि वो मीन टू रिवर्शन फॉलो होता है। However, last 2 years I have been wrong, वो डाइवर्जेंस अभी भी मेंटेन्ड है, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग माई सिस्टम, एंड मैं ज्यादा स्मॉल और मिड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक रीजन आई थिंक, एंड अगेन डेटा इज एज गुड एज द लॉजिक बिहाइंड द डेटा। अभी क्या हो रहा है कि लार्ज कैप में ना बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, एंड देन पीपल आर टेलिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज डेड, एंड हाई ग्रोथ कंपनीज जो है वो आ रही हैं, और जो पुरानी है निकल जा रही हैं। आई डोंट नो इफ देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इज हैपनिंग द वे इंडेक्स इज बीइंग बिल्ट and the kind of companies are coming, but yeah, sometimes it doesn't work also, and these are situations where it is not working. So इसको थोड़ा cautiously भी देखना चाहिए, and for the timing मैं यही कर रहा हूँ कि जहां पे मेरा मॉडल कह रहा है कि स्कोर ज्यादा आ रहा है वहां पे इन्वेस्ट करो, वो सही हो या गलत हो मैं वही कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि फिर भी मैं एवरेज से तो ऊपर ही बना लूंगा। या सो मैं एक बार जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं एक प्रोसेस रिवाइज कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये ब्रॉडर नंबर पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कब इन्वेस्ट करना है। उसमें 52 वीक हाई लो का रेशियो, वॉल्यूम, कुछ कुछ और पैरामीटर्स है जो आप कंसिडर करते हैं। उसके बाद आप एलोकेशन करते हैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में, डिपेंडिंग अपॉन विच वन इज शोइंग अ बेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ गोइंग अप। और फिर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो इसके पहले जो आपने बताया था कि बेस्ड ऑन दोस 5 स्क्रीनिंग पैरामीटर्स आप निकाल रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं जिन पे मेरे को करना चाहिए। टिपिकली स्क्रीनिंग पैरामीटर्स है साल में वही 2 से लेके 5 स्टॉक्स तक ही आएंगे पर सेगमेंट के अंदर में, तो आप इक्वली अभी उन स्टॉक्स के अंदर में पैसा डाल देते हो। हाँ, बस एक पॉइंट मैं चेंज करूंगा कि वो 2 से 5 आएंगे या 5 से 10 आएंगे, हमारे ऊपर है हम कितना लीनियंट होते हैं या हम कितना स्ट्रिंजेंट होते हैं। तो अगर हम 20% रिटर्न से खुश हैं तो हमारे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, बट अगर हमें 30 चाहिए तो हमारे ऑप्शंस घट जाएंगे, और फिर हमें बिहेवियरली भी बहुत ही कम टाइम पे एक्टिव होना पड़ेगा। वो हमारे ऊपर, हम कैसे एडजस्ट करें। बहुत सही, बहुत सही। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए समझना बहुत जरूरी है जो सौरभ ने समझाया, और इतने सरल भाषा में इन्होंने समझाया है। एक्चुअली में ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस टॉपिक को, तो मुझे पता है ये बहुत ऊपर से जा सकता है। बट जो इस तरीके से सौरभ ने समझाया, आप एक बार फिर ये वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आएगा। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट में, और जो क्वांटिटेटिव ड्रिवन होते हैं, क्वांट ड्रिवन होते हैं, वो ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आप जितना इसको समझेंगे, हो सकता है कि आप ये प्रोसेस खुद ना फॉलो कर पाए, बट एटलीस्ट आपको दूसरों की साइकोलॉजी पता रहेगा कि लोग इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि आप भी ये काम कर पाए, क्योंकि ये तो देखिए नेक्स्ट लेवल का काम है। तो नेक्स्ट लेवल का पैसा बनाने के लिए नेक्स्ट लेवल का काम तो करना ही पड़ेगा। सौरभ, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, कुछ टुवर्ड्स द एंड कुछ और आप बताना चाहेंगे? हाँ विवेक जी, सो जैसा आप कह रहे थे कि थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ये जो स्लाइड है, क्या क्या एफर्ट डालना पड़ता है ये स्लाइड वो बताता है। एंड मैंने जानबूझ के ना वो जो क्वांट्स मॉडल, पाइथन, वो सब की बात होती है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग, ये पार्ट नीचे आता है। मैंने ना ये सर्किल का नीचे का पार्ट आज टच ही नहीं किया है। ये बहुत ही अलग है और ये एक एडवांस लेवल है। अभी जो है हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना है इस दोनों में। डेटा इंजीनियरिंग इज बेसिकली डेटा कलेक्शन, बिकॉज आपको डेटा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप एक्सेल में कीजिए जैसे कीजिए। और दूसरा जो विजुअलाइजेशन दिखाया, जहां आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअलाइजेशन और टूल्स। तो इनफैक्ट मैंने एक बहुत ही, देयर इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक ऑन विजुअलाइजेशन, जो वॉल स्ट्रीट की जो रिसर्च हेड थी उन्होंने लिखा है। So actually it's stock market people also who have written these beautiful books, and the book deals with कि कहाँ पे किस तरह का चार्ट यूज करना है, नहीं करना है, and it's from one of our fraternity people, somebody who has been on Wall Street. So आप ट्राई कीजिए कि एक दो विजुअलाइजेशन की बुक पढ़िए, और ये जो सॉफ्टवेयर है पावर बीआई, ये सब फ्री में अवेलेबल है। अगर आप कोर्सेरा, उडेमी, ये सब मूव वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब, आप जाएंगे तो पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं। 20 आवर का क्रैश कोर्स है, आप पावर बीआई सीख लीजिए, फिर आप नया एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए इनसाइट्स निकालिए, और मे बी आप अपना एक नया मॉडल बनाएंगे जिसको आप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर सकें।
एब्सोल्युटली। कुमार, वो बुक का नाम अगर आपको याद हो तो बताइएगा ना। या द बुक नेम इज प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं आपको अलग से भी देखकर बता दूंगा। मुझे एग्जैक्ट ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट द ऑथर इज अ वॉल स्ट्रीट रिसर्च हेड। मैं आपको अलग से बता दूंगा। इनफैक्ट लेट मी ओके, गूगल एंड सी इफ आई कैन फाइंड ऑथर नेम। नहीं आप मुझे बता दीजिएगा, बाद में व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं ठीक अपने है, यूजर्स ओके। को वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगा, तो लोग चाहे तो उस बुक को फिर वहां से खरीद भी सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक ऐसा है कुमार कि बहुत मुश्किल है इसको 45 मिनट 1 घंटे के अंदर में कवर करना। और जैसा कि आपने बोला कि आपने एक्चुअली में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे दिया है। और मेरे लिए ये अब मेरे लिए खुद के लिए पर्सनली ये आपका स्लाइड है ना, ये स्क्रीनशॉट बन गया और मैं प्रिंट में लगा दिया हूं उसको अपने डेस्क के सामने। बिकॉज मेरा अब नेक्स्ट टारगेट है ये, आने वाले 1 साल में मुझे ये सारी चीजें सीखनी है जो आपने अभी यहाँ मेंशन किया है। क्योंकि यही नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ से 10 साल बाद अपने आप को सस्टेनेबल देखना चाहता हूँ, तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको भी करनी पड़ेगी। और हमारे साथ सौरभ जैसे साथी हैं, जो ट्विटर के अंदर में अपनी सारी बातें ओपनली डिस्कस करते हैं। दे आर ओपन टू ट्रेन पीपल इवन दो दे आर इन जॉब। वो अपना समय देते हैं, तो ये मानने वाली बात है बहुत। तो सौरभ, आपका ट्विटर हैंडल अगर एक बार वापस से रिवाइज करवा देंगे तो लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, सो मैं ट्वीट करता हूँ सुरू27 पे। ये मेरा ट्विटर हैंडल है, सुरू27। और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, सो ये मेरा हैंडल है सुरू27। और मैं ओके। ब्लॉगिंग भी करता हूँ। मेरा ब्लॉग आईडी है फैक्ट्स बियॉन्ड नंबर्स, जहाँ मैं ये सारा कुछ, ये सब मैं जो काम करता हूँ, बहुत कुछ मैंने वहाँ पे लिखा है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल। सो these are the two places where you can track. And Vivek ji, thanks a lot for giving this platform. And above that, both stockage and deal and market, मतलब एक क्या जबरदस्त ऐप बनाया है। because it's not only about data. And when it comes to visualization, I want to talk about stockage app, because एक ऐसे इतना information को दिखाना है, that is what visualization is. So don't say that you are going to keep it on list. You are already doing it on such a beautiful UI interface. That is what the real visualization is, to utilize the small real estate space of the screen and giving so much visual information in such a long time. So that is something which impresses me. And when I build these charts and all, मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ, अगर इतने स्पेस में अगर स्टॉकेज में ये चीज ऐसे ब्यूटीफुली आ सकती है, तो आई हैव अ बिगर डेस्कटॉप स्क्रीन, आई कैन डू इट बेटर. So thanks a lot from my side and all the investment community for giving us such beautiful tools. थैंक यू सौरभ भाई। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप web.stockage.com में जरूर जाइएगा। और आप एक्चुअली में हमको और प्यार करेंगे, एक बार वो web.stockage.com जरूर देखिएगा आप। मैंने देखा है, मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा है, बट मैं गया हूँ। बट मैं, आपने बोला है तो मैं और डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा, हाँ। बिकॉज अगेन जॉब में रहता हूँ तो मोबाइल पे इजी रहता है। दैट्स द रीजन कि मैं आई ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। अंडरस्टैंड, आई विल डू दैट। आई अंडरस्टैंड। Great. So, Saurav, thank you so much for recording this lovely piece for us. I'm sure this is going to really benefit a lot of people, especially the guys who are looking forward to build their serious career in this domain. Using quant to invest in market for a long-term wealth creation is very unique domain, and it is futuristic. And I hope that this video will become a foundation for people who want to excel in that domain. Thank you so much for participating in this face-to-face series. Thanks a lot, sir, and thanks for giving me this opportunity. And yeah, I hope that the audience, they get the maximum benefit out of it. Thank you, sir. Absolutely, they will get benefit. क्यों भाई, बेनिफिट मिलेगा ना दोस्तों, आपको उठाना है पूरा इसका बेनिफिट। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय एवरीवन।